So I would like to welcome everyone today on the launch of Innovation Ambassador Training Program for school teachers, and would like to welcome our chief guests of the day, Shri Arjun Munda ji, Honorable Minister of Tribal Affairs, and Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Minister of Education, Government of India. With permission of chief guest of the day, sir, shall we begin? Now like to invite my co-anchor, co-colleague, Dr. Biswajit Saha, to initiate the program further. Dr. Saha. Good morning and namaskar to one and all present here. If you look at history, innovation does not come just from giving people incentives. It comes from creating environment where their ideas can connect. Today, we are going to create such kind of environment, and our country is going to witness the launch of Innovation Ambassador Training Program for school teacher by Honorable Minister of Education, Sri Dharmendra Pradhan ji, and Honorable Minister of Tribal Affairs, Sri Arjun Munda ji, in the august presence of Secretary School Education, Madam Anita Karwal, Secretary Tribal Welfare, Sri Anil Kumar Jha, Chairman AICTE, Sri Anil Sahasrabuddhe, Chairman CBSE, Sri Manoj Ahuja, senior officers from the Ministry of Education and Tribal Affairs, and officers from AICTE and CBSE, and of course, 50,000 teachers from CBSE schools who have registered for this program. They are also very much present and connected with us in this virtual event. With this note, let me request Chairman CBSE, Sri Manoj Ahuja, to give वेलकम एड्रेस। नमस्कार। शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जनजातीय कार्य के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि मंत्रीगण महोदय जी इस अवसर पे हमारे साथ हैं, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी मंत्रीगण महोदय जी का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमें मिलता रहेगा। मैं आप सबका इस समारोह में स्वागत करता हूं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री अनिल झा जी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव महोदय श्रीमती अनीता करवल जी, AICTE के अध्यक्ष श्री अनिल सहस्रबुद्धे जी तथा चीफ इनोवेशन ऑफिसर श्री अभय जेरे जी, इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के अधिकारीगण, CBSE स्कूलों के प्रधानाचार्य और अध्यापकगण, मैं आप सबका इस ऐतिहासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में के उद्घाटन समारोह में स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि हम छात्रों को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करें। इसके लिए स्कूली शिक्षा में नवाचार, उद्यमशीलता और क्रिटिकल थिंकिंग लाने की आवश्यकता है। इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम के अंतर्गत 18,000 से अधिक स्कूलों के 50,000 अध्यापकगण आज इसमें प्रशिक्षण पाएंगे, जिससे एक इनोवेशन का परिवेश स्कूल में तैयारी हो सकता है। उद्यम यही रहेगा कि हर स्कूली छात्र अगर उसे कोई आइडिया है, उस आइडिया को सोच कर सके, उसमें उसे मेंटरिंग मिले और उसका आइडिया इंक्यूबेट हो और वह उसे एक प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट में बदल सके। इसके लिए ICTE के इनोवेशन काउंसलिंग की मदद ली जाएगी, और भविष्य में यही एक लक्ष्य रहेगा कि कई स्कूली छात्र भी अपने अपने आइडिया को प्रोडक्ट में बदल के उसके लिए पेटेंट पा सके। मैं एक बार फिर आज उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का इस समारोह में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सहृदय धन्यवाद श्री आहूजा जी। I would now like to invite Dr. Abhay Jere to present and brief about what is this Innovation Ambassador Program all. Dr. Abhay Jere, please. So first, I would really like to thank Honorable Ministers for giving us this opportunity and actually helping us conceptualizing this entire initiative under the leadership of Dharmendra Pradhan Sir as well as Arjun Munda ji. We have, as MOE's Innovation Cell, CBSE, AICTE, School Education Department, Higher Education Department have come together for this very
innovative program called as Innovation Ambassadors, where we will be trying to actually train 50,000 plus innovation ambassadors across the school of CBSE as well as schools under Ministry of Tribal Affairs. Before getting into the details, I would like to just talk about why we have conceptualized this entire initiative and how we are going to move forward. So this Ministry of Education Innovation Cell was established about 3 years back, and till date we were working more with higher education departments, but under guidance of Anita Madam and Ahuja Sir, now we have venturing into school education departments, and this is the first initiative in that direction. But before getting into it, I would like to present a small case which will highlight the work, the importance of the work which we are trying to do. These are the two kids, Yashraj Bharadwaj and Yuvraj Bharadwaj. They are just 19 years old, but they filed their first patent when they were in 8th standard. They started their startup when they were in 6th standard. And at 8th standard, they actually went ahead and sold that patent to a company for $1 million. And now, at age of 19, they are considered to be the most influential by Forbes magazine under 30. They are currently, they have a business which is about $80 million now, spread across 4 countries, and about 189 scientists are working for them. The reason I am bringing out this and example here or showcasing this example is because school played a very important role while for promoting them. At 6th standard, school gave them the office and support which was required to do their startup. And we wish that similar activities get spread across all the schools in this country so that we will have more and more startups coming up even from our school education systems. So, to ensure that that culture gets created within our schools, the importance is to create our on-ground change agents. And today, by training these 50,000 school teachers, we are hoping that we create on-ground change agents for us for promoting innovation, entrepreneurship, and startup activities within our school systems. So, they will be trained for 72 hours module spread across 2 months. It's quite an exhaustive training, and they will be trained in these 5 modules. The first one of the important module is on design thinking and innovation. So how to think, how to approach a problem, how to visualize a problem, how to think about the solution, and so on and so forth will be done in this design thinking module. Then once you have a good idea, how to handhold that idea and take those ideas forward will be done in the second module. If the idea is good, then how we can convert it into an intellectual property. What are the requirements related to intellectual property filing, so on and so forth will be covered in the third module. Then once the idea is good, intellectual property is good, but if you have to really convert it into startup, prototype development and take it forward as startups, how to proceed? So that is the fourth module. And then finally, if any startup has to succeed, then they also need to look at finances, sales and HR part of it. It's a small module because the stress, we don't expect teachers to actually get into the fifth module in such a big way. So this is the spread of current innovation ambassadors which we have got nominated from CBSE. They have worked really hard to get these nominations, and you can see that they are spread across the country. So this is what the current registration is, and from 20th of July we will be actually starting this school education program, innovation ambassador program. So if you really look at the modules which we are going to deliver, you can see creativity, ideation, from storytelling to solving wicked problems, persona, empathy. These are completely new ideas or new perspective which we will be giving to schools teachers, which we have never done before. Then the second module, as I said, was in idea generation and hand-holding, and you can see that what is MVP, what is technology transfer, what is venture capitalist, how to bootstrap an idea, and so on and so forth. Again,
None of this was done before. Again, when it comes to IPR, you can see that what is IPR, what are the geographies, indicators, and so on and so forth. What is the difference between patent, trademark, design, branding, and so on and so forth. So these are the modules which we will be taking. Fourth module is prototype development, which will more focus on actually prototype testing, technology readiness levels, how to create a business model around it, and so on and so forth. And finally, the small module, which talks about how you can go ahead, where you can generate money, what is equity, if the partners are there, what kind of equity sharing management has to be there, what currently GST rules apply in these aspects, and so on and so forth. So these are the 5 modules which we will be doing for next 2 months, and post this Innovation Ambassador program, all these 50,000 teachers will be used as Innovation Ambassadors, change agents, and with their help, we will establish school innovation councils within these schools. And through these school innovation councils, we plan to nurture them, handhold them, support them for over next 2 years, because just one training program doesn't create that kind of an impact. But if we have to really create a sustainable ecosystem within these schools, then they need to be continuously monitored, supported, and handholded. And for that, we have created already the platforms. The platforms will be ready in a month or so, and then we will actually do another program for launching these school innovation councils. These ambassadors will get this badge, which they can wear on their chest, and actually flout that badge, saying that they are the innovation ambassadors, which are endorsed by Ministry of Education. And because of that, they can actually go, all the students within that educational institute will know that if we have great idea, then we should go to these innovation ambassadors, and they will help us nurture them forward. So this is the brief about the program. More than 35-40 trainers are getting involved. It's going to be a very, very exhaustive training, followed by assessment and then certification from Ministry of Education. So I will stop here. Thank you, Dr. Jere. I think you have given the core vision of this program, and I am confident that our teachers of CBSE affiliated schools will take it forward, and of course, they will wear that badge and all take it to the community. With this, I would like to request Secretary School Education and Literacy, Government of India, Madam Anita Karwal, who is brain behind this kind of innovations activity. Especially, we are also feeling fortunate to part of the design thinking process of NEP finalizations, especially for the school education. And Madam always believes how we can create the creative temperament, and along with that, fitness and art integrations are the key component of innovations activities. And with this, Madam, over to you. I think your word of wisdom will definitely inspire all the teachers, educator, and principal of CBSE affiliated schools. Madam, over to you. Thank you, Biswajit. Honorable Minister of Education, Shri Pradhanji, and Honorable Minister of Skills and Mosdi, Honorable Minister for Tribal Affairs, Shri Mundaji, Honorable Ministers of State, Srimati Annapurna Devi ji, Dr. Sarkar and Dr. R.R. Singh, my colleagues, secretaries, senior officers, school principals, teachers, all who are present here today in this highly innovative forum. Sir, I would like to take you back to the whole concept that has just been spoken about by Dr. Abhay Jere. How it all emerged is, firstly, sir, I want to just mention that this AICT and CBSE combination is a very potent combination. And this combination is actually being experimented for the first time. We have been a little in our silos, but now we are trying to get together and converge, as you always keep saying.
In CBSE, sir, it has always been a very progressive board, very innovative, very creative, and it has always looked at the future possibilities. And in that context, not only in curriculum delivery, assessment reforms, pedagogy reforms, teacher training, and also skills, CBSE has actually been a forerunner. And CBSE has also started this system called Hubs of Learning, which was started in 2019, where one leader school, along with its hub of 5 to 6 attached neighborhood schools, they work together for self-improvement. And this is actually the precursor of school complex, which National Education Policy talks about. Now, I also want to mention that CBSE was the first board in the world which introduced artificial intelligence as a skill subject from class 8 onwards. So when it was introduced in 2019, immediately almost 800 schools elected to take up this subject. Now, of course, it is much larger. The COVID-19 has impacted these kind of skill subjects because hands-on training nahi ho pa rahi hai. However, we are very sure that as and when this wanes, this is going to be a very big thing. And following CBSE, which as a national board took up this as a skill subject, within days and within months, several countries decided to introduce this as a skill subject. CBSE has also become the first board in the world, sir, to introduce design thinking as a skill subject this year. Design thinking, sir, actually is an area where problems are solved creatively by keeping the consumer in mind, and also by ensuring that there is good interaction with the environment, which is sustainable in its methodology. And also there is a hand-holding and a collaboration of efforts. So with design thinking actually personifies all the skills of the 21st century which are related to learning. So when we are talking about the 4 major skills related to learning of the 21st century, which is creativity, critical thinking, collaboration, and communication, all these 4 are personified in design thinking. And with this background, when we started our discussions with AICTE, we realized that unless we go down till the last school, this word is not going to go ahead. Plus, sir, the Honorable Prime Minister has always focused on innovation, and he has been saying that if we want to become a $1 trillion, $5 trillion economy, then we need to have more patents. And patents begin early, and that's why we thought that we would do this kind of a program. Sir, these 50,000 ambassadors are from CBSE schools and from schools of Eklavya model residential schools. And we are very glad that the Ministry of Tribal Affairs is also converging with us on this, because convergence is actually the word of the future. And unless we all put in our efforts together, this will not work. I feel that, sir, that we need to move away from simply educating children to skill. That is more important now than simply learning and educating. And we also that we need to move away from imbibing of content simply to building competence. So these are 2 aspects which we are trying to take care of here. I only hope and I request the team that we need to involve 100% of our Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas, they are our schools after all, and also 100% of the EMRS, the Eklavya model residential schools, because that will go a long way in taking this thing forward. With these words, thank you very much. Thank you so much, Anita ma'am. And the words like you mentioned, first in AI, first in design thinking, I am sure our schools will be first to achieve the IP goal and patent filing as well. I would now like to invite Shri Anil Jhaji, Secretary, Ministry of Tribal Affairs, to please share his words with us. Thank you. Honorable Minister of Tribal Affairs, Shri Arjun Munda ji, Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Ministers of State, Sirs and Madams, my senior colleague Secretary of Higher Education, Shri Amit Khare ji, my colleague Secretary School Education, Srimati Anita Karwal, Professor Anil Shastri Buddhe ji, Shri Manoj Ahuja,
Dr. Abhay Jere, all colleagues, teachers and participants, a path-breaking reform has already been accomplished by the Ministry of Education in bringing about the new education policy, which in itself is a prime example of the innovative thinking in the government. Now, it is for all in the field of education in general, and in particular for those who are implementing public policies, to take advantage of this once-in-a-generation reform. Encouraging innovation is at the core of the new education policy, and it is for the entire ecosystem of education to translate this vision into practice. Teachers will need to play the most important role in transforming the students' way of thinking, in how they visualize the link between the country's future and their own future, in making them think big for community, society, nation, and indeed for the welfare of the entire world. This Innovation Ambassador Training Program will enable the teachers in training young school students on critical thinking modules. Teachers will need to evolve new methods of teaching. They will need to first transform themselves into guides from being instructors of written textbooks. Providing quality education to tribal children has been the most important objective of the Ministry of Tribal Affairs. Apart from running our own Eklavya model residential schools, we have been supporting initiatives of the states and union territories in spreading scientific education to tribal students so that country can benefit from the immense talent pool that is available among the tribal population of our country. We have been honored to be in association with the Ministry of Education and will always like to take guidance from the core competence available with them in promoting education among tribal children. Ministry of Tribal Affairs has launched an Adi Prashikshan portal, which is a repository of such training inputs. It will be of great benefit for us if this training module gets connected to our portal also. We extend, on behalf of the entire Tribal Affairs Ministry, heartfelt gratitude for the hard work done in organizing this training program and convey our best wishes to the participants. Thank you once and again. Thanks. Thank you, Anil sir. Now let us invite Honorable Minister for Tribal Affairs, Sri Arjun Munda ji, to bless the event with his kind words. Over to you, sir. आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, और इस समय इस कार्यक्रम के निमित्त सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा जी, हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अनिल कुमार झा जी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अमित खरे जी, चीफ इनोवेशन ऑफिसर जिसने अभी प्रेजेंटेशन दिया डॉक्टर अभय जेरे जी, और जिसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, वैसे समस्त उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, हमारे नेस्ट के पदाधिकारी आसित गोपाल जी, और भाग ले रहे सभी महानुभाव। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि पदभार संभालने के बाद मैं समझता हूं कि इनोवेशन प्रोग्राम के लिए, नवाचार कार्यक्रम के लिए पहला अवसर जनजातीय मंत्रालय को दिया है कि इसके माध्यम से एक संयुक्त कार्य योजना नवाचार के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े और कार्यक्रमों को सफल बनाएं। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं माननीय मंत्री सहित शिक्षा मंत्रालय के सभी राज्य मंत्री और पदाधिकारियों का,
और जो हमारे शिक्षा संस्थान है उसके सभी पदाधिकारियों का। इस कार्य योजना में 50,000 शिक्षकों को इस इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम के माध्यम से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो मैं समझता हूं कि एक दूरगामी परिणाम देने का एक सोपान, एक पायदान, जिसके माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि हम अपने देश के उन क्षमताओं का क्षमता विकास और वो सारी शक्तियों का उपयोग कर सके जिससे हम दुनिया को ये बताने में सफल हो कि हमारे ज्ञान के माध्यम से हम भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और वो क्षेत्र है नवाचार का, इनोवेशन का। और हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने ढंग से सोचता है, अपने अपने दृष्टि से देखता है, अपने अपने क्षमता को धरातल पर उतारने का प्रयत्न करता है। और यह अवसर इस समय मैं कहूंगा कि जहां शिक्षा मंत्रालय इस तरह के कार्यक्रम को संस्थागत रूप से आगे बढ़ा रहा है, एकलव्य मॉडल स्कूल, जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, आदर्श विद्यालय है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लगभग 740 स्कूल्स होंगे पूरे देश भर में आगामी 3 वर्षों, और वो सभी जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, वनों के बीच रहने वाले लोगों के बीच में बन रहे हैं। वैसे क्षेत्रों में उनके मानसिक क्षमता का विकास करने के दृष्टि से एक नया अध्याय जुड़ रहा है इनोवेशन प्रोग्राम का, जिससे अभी फर्स्ट फेज में हम उनके शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे और इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि एक विद्यार्थी जो कल्पना की उड़ान को एक आधार ढूंढता है, वो अपने तरीके से चीजों को देखते हुए हकीकत में बदलने के लिए रास्ता बनाना चाहता है, उसे हम पगडंडियों से मुख्य सड़क तक ले जाने का एक सुगम रास्ता बता सकते हैं, दे सकते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी, इनोवेशन एक बड़े क्षेत्र में होता है, हो रहा है, या बड़ा कोई इनोवेशन हुआ, यही सिर्फ नहीं होता, बल्कि अपने नजदीकी की चीजों के प्रति दृष्टि और उसमें यदि एक परख हो और उसको ग्राह्य करने की क्षमता हो, तो वो अपने ही आवश्यकता के अनुसार बहुत चीजों में इनोवेशन करके उसमें सुदृढ़ता ला सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है। तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। मैंने देखा प्रेजेंटेशन में 2 विद्यार्थियों का चित्र, उन विद्यार्थियों से मैं मिला हूं, ये दोनों ट्विंस हैं और इन विद्यार्थियों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। हमने उन दोनों विद्यार्थियों से बातचीत किया है और उन लोगों का ऐसा, दोनों भाइयों में इतना अंडरस्टैंडिंग भी है और इस तरीके से इनोवेशन प्रोग्राम में वो लगे रहते हैं कि एक भाई जब यूरोप या अमेरिका के टूर में रहता है तो दूसरा इंडिया में रहता है। इनका एरो सिटी में बहुत बढ़िया ऑफिस है, ये लगातार कंसल्टेंसी का प्रोग्राम भी साथ साथ चलाते हैं और मानव विकास यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है और खुद MBA के बच्चों को प्रशिक्षित करने का कार्य रात में करते हैं। रात में, चूंकि इंडिया में रात होती है, अमेरिका में दिन होती है, तो बच्चों को पढ़ाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेते हैं। तो ये मेधा, ये क्षमता भारत के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों में है, जिसे हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कुरेद सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और वही कार्य आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी लगातार हम सबको आह्वान करते हुए, देशवासियों को आह्वान करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं
कि हमारा इस तरह का नवाचार कार्यक्रम निचले स्तर से कैसे प्रारंभ हो। और वास्तविक रूप से मैं कहूंगा कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये जो अवसर जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के दृष्टि से शिक्षकों को जोड़ते हुए यह कार्यक्रम बनाया है, मैं समझता हूं कि एक दूरगामी लक्ष्य को पूरा करेगा जो भारत की आवश्यकता है। भारत की आवश्यकता आज यही है कि हम इस देश में अपने भारत का देशज ऐसे चीजों को कैसे पेटेंटेड अधिक से अधिक बनाए। बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर हम अधिक से अधिक चीजों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो हमारी संभावना है, इस संभावनाओं का मैं समझता हूं कि आज एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से नया द्वार खोलने का एक नया योजना का सूत्रण हो रहा है। हम आज इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि एक संक्षिप्त कार्यक्रम में बड़ा उद्देश्य को पूरा करने का लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में इसका परिणाम जब हमारे सामने होगा तो हम सबको खुशी होगी। हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तत्वाधान में नेस्ट, हमारा जो एकलव्य आदर्श मॉडल स्कूल है, आवासीय स्कूल है, वो लगातार, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे NIEPA हो, ATL हो, CBSE हो, या ये जो हमारा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, टेक्निकल एजुकेशन सेंटर हो, या ऐसे संस्थाओं के साथ मिलकर के कार्य करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। और हम सब मिलकर के ये जो लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एक उद्देश्यपूर्ण कार्य योजना, भारत में पहली बार जनजातीय क्षेत्रों के लिए ऐसे योजना का सूत्रण हुआ है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, कि 20,000 की आबादी में नवोदय की तरह ही एक आवासीय परिसर का निर्माण, जहां 20,000 की आबादी और 50% से अधिक आबादी हो जनजातीय का, वहां यह विद्यालय खोले जाएंगे। तो ये विद्यालय खोलने का क्रम जारी है और इसके साथ साथ ही हम उन शिक्षकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी जोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम है, जिसको हम आगे बढ़ाने पर अपने आप को, अपने देश को गौरव दिलाने में बहुत बहुत अधिक जिसे कहा जाए उपलब्धियों के साथ अपने आप को जोड़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा मंत्रालय के मंत्री सहित सभी राज्य मंत्री और पदाधिकारियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका सहृदय आभार। और जिस तरह आपने हमें कहा और एक तरीके से आदेश भी है, हम इस मिशन को जन जन तक लेके जाएं ताकि हमारा देश सुदृढ़ हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको भी हम रियलाइज करा सके। आपका सहृदय आभार। अब मैं माननीय मंत्री जी ट्राइबल अफेयर्स और यूनियन मिनिस्टर श्री प्रधान जी से आशीष वचन चाहूंगा। एक वीडियो लॉन्च के द्वारा हम इस प्रोग्राम का लॉन्च करेंगे। उसको चला देना भी Friends, I believe where convention fails, innovation can help. Thank you so much, Honorable Ministers. Now I would like to invite
our Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, to bestow upon his address to us. Thank you so much, sir. नमस्कार। आज की कार्यक्रम में उपस्थित देश की वरिष्ठ जनजाति नेता, भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स विभाग के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, राजकुमार रंजन सिंह जी, डॉक्टर सुभाष सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय अनीता जी, ट्राइबल अफेयर्स के सचिव आदरणीय अनिल झा जी, एआईसीटी की चेयरमैन आदरणीय अनिल सहस्रबुद्धे जी, सीबीएसई की चेयरमैन आदरणीय मनोज जी और इस इनोवेशन सेल की प्रमुख आदरणीय अभय जी तथा आज की कार्यक्रम में देश भर से जुड़े हुए सीबीएसई नेटवर्क से जिन जिन की संबंध है, वो केंद्रीय विद्यालय हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, एकलव्य विद्यालय हो या निजी मैनेजमेंट के द्वारा चलने वाले स्कूल समूह हो, ऐसे सारे स्कूल्स की मैनेजमेंट, प्राध्यापक, शिक्षक, मित्रगण, पौंडीचेरी से मित्र जुड़े हैं, पोर्ट ब्लेयर से भी मित्र जुड़े हैं, श्रीनगर से भी मित्र जुड़े हैं, तंजावुर, रांची, रायगढ़, ऐसे अनेक स्थानों में हजारों की संख्या में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को इनोवेशन एम्बेसडर, इनोवेशन सेल, शिक्षा विभाग द्वारा कल्पना की गई इस कार्यक्रम, जिसमें आज तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जुड़ा है। आने वाले दिनों में इसकी जो पोटेंशियल मैं पिछले कई घंटों में समझ पाया, शायद 21वीं सदी में हम जो मित्र यहां बैठे हैं, शायद इसके उत्तर हमारे पास नहीं है। 21वीं सदी की 21st सेंचुरी की जो समस्याएं इमर्ज करेगा। आज हम अमृत महोत्सव मनाना देश की शुरू किए हैं। आने वाले 25 साल के बाद देश आजादी का 100 साल मनाएगा। आज जो इनोवेशन एम्बेसडर, जिनकी मार्गदर्शन में लाखों बच्चे, कल्पना करिए आज जो 15 साल की बच्चा होगा, क्लास 9th 10th की स्टूडेंट्स होगा, 12 साल की बच्चा होगा, उसमें 25 जोड़ दीजिए, ये तब 25 प्लस 15 ये 40 में पहुंचेगा। 40 साल में वो अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय में गुजर रहा होगा। इसलिए आज ये जो इनोवेशन एम्बेसडर्स की 2 महीने के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल शुरू हो रही है, और मैं मानता हूं शायद इसमें न केवल हमारी देश की आवश्यकता को पूरा करने की आज हम श्रीगणेश कर रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में दुनिया की समस्या के उत्तर ये इतिहास साक्षी रहेगा। आज 16 जुलाई है, 16 जुलाई 1921, जब विश्व एक त्रासदी के अंदर, एक क्राइसिस के अंदर जा रहा था, उसी समय में भारत की शिक्षा समूह, भारत की विद्वानों ने ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट की कल्पना किया। कभी थोड़ा सोचिए, कौन सी देश इस प्रकार की कल्पना कर सकता है? न केवल वैज्ञानिक खोज या मेटेरियल इनोवेशन नहीं, दुनिया में अनेक सभ्यता पिछले कई हजारों सालों में, हमको इतिहास में या वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर उसको हम मानते हैं, सभ्यता हजारों साल की है। मैं पुराण, महाभारत, इन युगों की बात नहीं कहता। मैं जो वैज्ञानिक प्रमाण आधारित जो सभ्यता विश्व में विद्यमान है, जिसकी एविडेंस, जिसकी एम्पिरिकल एविडेंस, जिसकी साइंटिफिक
एविडेंस हमें हमारे सामने आ जाए। इनको अगर मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, तो एक विषय ध्यान में आता है, किसी ने तो उसके बारे में कुछ सोचा था। जो कीर्ति पिछले दिनों में, मैं उत्कल से आता हूं, उड़ीसा से आता हूं, कभी मैं मेरे प्रदेश को देखता हूं, हजारों साल पहले कोणार्क मंदिर बना था, पुरी में मंदिर बना था। कोई तो वहां आर्किटेक्चर वहां काम किया होगा, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो वहां काम किया होगा, कोई तो समुद्र किनारे हजारों साल अगर एक इतनी बड़ी आकार स्थापित है, कोई तो केमिकल इंजीनियरिंग वहां काम किया होगा। मित्रों, अभी मुंडा जी उल्लेख कर रहे थे, नवोदय विद्यालय बनों के अंदर हम कर रहे हैं। हम उनको आदिवासी क्यों कहते हैं? शायद सभ्यता की, मानव सभ्यता की प्रथम बैच वही लोग हैं। तो उन्होंने जो जिंदगी, आज हमको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, कोरोना में उल्टा हो गया। कोरोना में सब जाके जंगल में रहे लोग, ऑक्सीजन की क्राइसिस शहरों में हो गई, ऑक्सीजन के लिए लोग जंगल की ओर गए। हजारों सालों से जंगल में जो लोग रह रहे हैं, क्या वो बिना इनोवेशन के रह रहे हैं? मित्रों, यही एक मूल प्रश्न मानव सभ्यता को यहां तक लेके आई है। इनोवेशन के पीछे और दो चीज है, उसका नाम है संवेदनशीलता। यह समस्या है, यह चैलेंज है। मैं इन दिनों में जब कोरोना की बारे में कई मित्रों से चर्चा कर रहा था, वैज्ञानिकों से चर्चा कर रहा था, प्रारंभिक दिनों में तो लोगों ने कहा वैक्सीन ही उसकी उत्तर है, लेकिन वैक्सीन को बनने में शायद 15-20 साल लगेंगे। यही शुरुआत जानकारी मिली। पिछले साल अप्रैल मई में जब वैक्सीन, ये समस्या का समाधान क्या है, उसके बारे में जब चर्चा हुई, ये बात आई ध्यान में कि 15 साल लगेगी। किसको क्या पता था कि 5-6 महीने के अंदर भारत के वैज्ञानिकों ने भी वैक्सीन बनाने का काम में सफल प्राप्त कर दी, दुनिया ने भी किया है। शायद किसी की संवेदनशील मन और जो चैलेंज रूप, विश्व की समस्या की जो समाधान करने की एक मन में अर्ज, उसी में इनोवेशन आई। और मित्रों, इसमें कोई दोहराए कभी नहीं है, इनोवेशन तो बच्चों में ही आती है। कभी एपीजे अब्दुल कलाम जी अगर अपने गांव में नौका में बैठ के आकाश को देखते हुए विमान को ना दिखते, उनके मन में ना आता मैं एरो साइंस पढ़ूं और दुनिया की ये जो नया दुनिया है उसमें मैं मास्टरी करूं। ये तो अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ने में एकदम बचपन पे इनकी जो जिज्ञासा, उनकी जो मन में जो एक कल्पना, शायद उनको एक बड़ा इनोवेटर करके बनाया। मित्रों, सारे सफल व्यक्ति की मन में, महात्मा गांधी जी की मन में अगर संवेदना नहीं रहती तो दक्षिण अफ्रीका छोड़ के वो भारत में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आते। वो एक सोशल इनोवेशन है। महात्मा गांधी जी ने काफी समय विश्वास किया है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें समस्या की समाधान ढूंढना है, हमको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट से इनोवेशन आई है। और मैं आज विद्यार्थी कभी कभी मेरे जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मैं मेरे सबसे किसी को अगर कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं, किसके प्रति मैं मेरा श्रद्धा को समर्पित करता हूं, शायद मेरे कोई टीचर के ऊपर। मेरे मन में जो कुछ अच्छाई आज अगर है तो उसकी प्रारंभिक कल्पना मेरे को किसने दिया? मेरे माता पिता ने दिया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से मेरे को कोई इंपैक्ट दिया है मेरी जिंदगी में तो मेरा टीचर। मित्रों, ये काम आज आप करने वाले हो। आपको एक आधुनिक समय में वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए क्या होगा आने वाले दिनों में। जैसे मैं आज आप कहा कहीं श्रीनगर से कोई मित्र जुड़ा है, हम उसको दिल्ली से बात कर रहे हैं, कोई सुदूर रांची से कोई जुड़ा है, कोई पोर्ट ब्लेयर में बैठ के जुड़ा है। ये तो इनोवेशन है, ये तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम संवाद कर पा रहे हैं। आने वाले 2 साल के बाद भारत की हर एक गांव में 5G क्वालिटी की इंटरनेट पहुंचने वाला है। दुनिया छोटी हो जाएगी, भारत हमारी एक टेलीफोन के अंदर आ जाएगी। इसलिए संवाद संचार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये जो कल्पना आज इनोवेटिव काउंसिल ने सोचा है कि ये जो 5 प्रमुख विषय, किसी भी विद्यार्थी के मन पे कोई कल्पना को एक जर्मिनेशन करना, उनको अंकुरित करना, उसकी डिजाइन, उसकी थिंकिंग, उसकी
नवाचार, उसकी इनोवेशन, आइडिया को एक कमर्शियल मोल्ड पे ले आना, उसके लिए व्यावसायिक मदद करना। उसके लिए मैं कुछ दिन पहले देश के हमारे एक बड़े प्रमुख व्यक्ति से मिला, रतन टाटा जी से मिला। रतन टाटा जी को मैंने पूछा आप कैसे समय बिताते हैं? उन्होंने कहा कि मैं मेरे निजी इनकम से एक फंड बनाए हूं, शायद उस फंड का नाम उन्होंने मेरे को अवंतिका कहा था। वो फंड क्या करेगा उसको? उन्होंने कहा कि नए पीढ़ी के जो एंटरप्रेन्योर आएंगे उनको मैं मदद करूंगा। इसलिए मित्रों, मदद की तो शायद कोई अभाव ही नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं रिसोर्स की कोई इशू नहीं है, इशू है वो कल्पना स्कूली विद्यार्थी में, कोई गांव में बैठा हुआ, छोटे शहर में बैठा हुआ, जो एक वैज्ञानिक बैठा है, जो सामाजिक वैज्ञानिक बैठा है, जो नया सृजन की या नया पोटेंशियल नोबेल प्राइज की विनर बैठा है, उसको ढूंढ निकालना। आप समझ रहे होंगे आपको काम क्या दिया है, उस बड़ा प्रतिभा को ढूंढ के निकालना, उसको मेंटरिंग करना, उसको कल्पना देना और उसको दुनिया की समस्या का समाधान की नेता बनाना, ये काम आपके पास है। मित्रों, मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। मेरा विश्वास है, हमारी आत्मविश्वास है, सामूहिक विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी में यह कल्पना रखा है, हम भारत की समस्या केवल नहीं निकालेंगे, भारत की समस्या तो समाधान करना ही है, यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले सभ्यता है। हमें कब कब भी मौका मिला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति इस कोरोना के समय में पहले अपने ही चिंता किए, दुनिया की बाकी लोगों की चिंता उन्होंने छोड़ दिया। भारत ऐसा नहीं किया। अभी भी पिछले कई महीनों में भारत अपने को संभाला, दुनिया को भी संभाला। ये भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है। ऐसे भारत इस इनोवेशन एम्बेसडर्स की जो प्रोग्राम शुरू किया, मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, इसको राज्यों की स्कूल्स में जोड़ना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये आने वाले दिनों में विश्व की स्कूल्स आएंगे इसके पास। ये हमारे जो इनोवेशन सेल है ना, AICT हो, CBSE हो, स्किल डिपार्टमेंट की NCVT को उसमें जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में जो नया एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश की जो नया फ्रेमवर्क बना है, उसमें हमारी नौजवानों की ज्ञान के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी, नॉलेज के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की जो एक होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है, उसको नई ऊंचाई देने का ये इंस्ट्रूमेंट आज हमने शुरू किया है। और सदैव आपकी बड़ी भूमिका है। पिछले दिनों में भी बच्चों को समझाने में और उनको आगे ले जाने में आपकी भूमिका रही है। और आज ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट में हम बनाने जा रहे हैं जिसकी इंपैक्ट ग्लोबल रहेगा, ग्लोबल क्राइसिस के प्रति रहेगा, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी की समाधान इसी के साथ है। मैं इसी आत्मविश्वास के साथ आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। Thank you, sir. I think you have covered the entire spectrum, more than innovations, how actually we can visualize the global problem of 21st century. Besides this, how India can emerge, and especially that young generation with the roles of teachers, how we can motivate them. Sir, आपने सारे पहलू में अपने वचन दिया है, और I think so we are really grateful to you. And with your wisdom and leadership, we are going to take it forward to entire nation and from CBSE to other state board and other community. And this would be an example for pan-India as well as globally. This innovations program will create a synergy for open innovation. With this, now let me request Sri Anil Sahasrabudhe, sir, Chairman AICT, to give vote of thanks. नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा मंत्री भी है तथा हमारे कौशल विकास और उद्यमशीलता के भी मंत्री हैं, हमारे बीच में हैं। इसके अलावा जो ट्राइबल अफेयर, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट
हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर सुभाष सरकार जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी तथा हमारे अनेक जो सचिव है, अमित खरे जी यहाँ अभी नहीं पहुंच पाए लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीमती अनीता करवाल जी, डॉक्टर मनोज आहूजा जी, डॉक्टर अनिल झा जी और डॉक्टर शाह जो अभी कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो बाय द वे मेरा स्टूडेंट भी था निरिष्ट में, तो इसलिए मैं बहुत खुशी हो रही है। और डॉक्टर अभय जेरे जो मिनिस्ट्री की इनोवेशन सेल का मूवमेंट चला रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शायद जैसे मंत्री जी ने कहा कि ये 25 साल के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, तो आज का दिन जो है 16 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही हमारा इंटरनेशनल स्किल डे भी हुआ और ये दोनों का संगम यहाँ हो रहा है। ऐसे ही 3 मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता, ये 3 मंत्रालयों का संगम और दूसरी तरफ हमारे AICTE मिनिस्ट्री का इनोवेशन सेल और CBSE, इनका भी एक अलग संगम ऐसा जब हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आज जो हम देख रहे हैं कि 50,000 शिक्षकों को और करीब 18,000 स्कूलों में हम पहुंचकर वहाँ नवाचार बनाने के लिए जा रहे हैं। और जो इंग्लिश में हम इनोवेशन एम्बेसडर कहते हैं, यानी इसका मतलब नवाचार के राजदूत। तो मैं सोच रहा था कि एक नया शब्द प्रयोग तैयार करना चाहिए। ये सब नवाचारी है और ये नवाचारी सभी जो 50,000 आज है, तो ये CBSE स्कूल और एक लेवल स्कूल, इनके अलावा ये तो मेरे ख्याल से एक तरफ से हमको ट्रेलर करके देखना चाहिए और अगली मूवी जो है वो जब हम सारे स्कूलों में इसको हम पहुंचा देंगे, तब हम सही ढंग से हमारा पूरा का पूरा इनोवेशन कल्चर स्कूलों में हो जाएगा। और CBSE और AICTE ने MOU किया है, क्योंकि जैसे कहा गया कि सबसे पहले दुनिया में यदि किसी स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू किया है तो CBSE ने। और ये CBSE के स्कूलों में टीचर्स को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम इसकी जरूरत जब पड़ी, तो हमारे अटल इनोवेशन हमारा जो मिशन है उसमें ही स्कूलों को टीचरिंग लैब भी दी गई है। और इसका प्रयोग ठीक तरह से होने के लिए AICTE ने टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये विड़ा उठाया और हमारा अटल एकेडमी का जो प्रोग्राम होता है उसमें स्कूलों के टीचर्स को हम सहभागिता कर रहे हैं और AI में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वैसे ही इनको एम्बेसडर बनाने में, यानी इनोवेशन का मूवमेंट चलाने के लिए ये जो 2 महीने तक हम ट्रेनिंग देंगे, 5 मॉड्यूल 72 घंटे का ट्रेनिंग, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 50,000 टीचर हर क्लास में जो 50-100 लोगों को वो हैंडल करते हैं, इतने लोगों के सामने तुरंत हम 2 महीने में पहुंचा सकेंगे और ये नवाचार का नवा युग भारत तैयार करने में हम सक्षम हो गए। ऐसे कहते हुए आप सभी लोगों को और एक बार धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी का, श्री अर्जुन मुंडा जी और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, सभी सेक्रेटरीगण और सभी सज्जन जो भी आज हमें सुन पा रहे हैं दूर दराज तक, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उपलक्ष्य में हम प्रोग्राम का समापन करते हैं और सभी टीचर्स को का भी आभार व्यक्त करते हैं। 2 महीने बाद हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। सहृदय धन्यवाद, आभार।